ऑफ कोर्स आई हैव रेड कि आपको कुकिंग, एम्ब्रॉयडरिंग, स्टिचिंग इस तरीके से ग्रूमिंग की गई थी। आपको एक होम मेकर बनने के लिए ग्रूमिंग की गई थी। That is true. That I feel that initially when I joined the IPS, people were not prepared for a woman in uniform in Bihar. Our society in Bihar was very conservative, and the DG felt ki, why have you come to Bihar? This is not Delhi, and how will you work? यू टुक अप एज अ चैलेंज। वो अपने आप में आपने टेस्ट पास कर दिया होगा कि आप में इतना ज़ील है। मैम, यू वर सर्विंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द भागलपुर ब्लाइंडिंग केस। डिड यू विटनेस इट फर्स्ट हैंड? एंड इफ यू डिड, व्हाट रोल डिड यू प्ले इन एड्रेसिंग इट? भागलपुर ब्लाइंडिंग बहुत ही चैलेंजिंग केसेस था बिकॉज पुलिस वालों ने हार्डन क्रिमिनल्स का ब्लाइंडिंग किया था टू कंट्रोल क्राइम। और पब्लिक इतना त्रस्त हो गया था विद द क्राइम विच वाज हैपनिंग इन भागलपुर कि वो पब्लिक को पुलिस को सपोर्ट कर रहे थे। और हम लोग का जो कहा गया था इंक्वायरी करने के लिए, वो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये लोग नहीं चाहते थे कि इस तरह का हीनस क्राइम गवर्नमेंट सपोर्ट करे। मैम, यू सो कंपैशनेट, लाइक द डीआईजी सेड टू यू, कुर्सी मैटर नहीं करती, जो कुर्सी पे बैठा है वो इंसान मैटर करता है। Namaskar and welcome to Fem Forward podcast. Today we have a very interesting guest. She needs no introduction. She's the first woman IPS officer from Bihar and fifth from all over India. We'll be diving into her life journey and talking about her very interesting book, Madam Sir, which reminds us that sky is the limit, anything and everything is possible. You just have to believe in yourself and follow your dreams. Stay tuned and watch this episode to feel inspired and get motivated. Good afternoon, ma'am. How's the Josh today? Thank you. Good afternoon. I'm fine. I'm really looking forward to this interview. Thank you so much for joining us. It is a huge honor. And in sitting across the first woman IPS from Bihar and the fifth in India, I couldn't have wanted more. Thank you. And how are you feeling? I'm fine. I've been doing podcasts. So when you requested me, I thought about it and then I decided. It's taken me a long time because I've been traveling, I've been very busy. So fortunately, we could coincide this timing today and I was able to come. I'm so grateful, ma'am. Thank you so much. एंड मैं आपकी अभी किताब पढ़ रही थी एंड इट इज़ सच एन इंस्पिरेशन एंड आई फील कि एक बार पढ़ने से होगा ही नहीं। आई वांट टू गो ओवर इट अगेन एंड अगेन। आई फील इफ एनीबडी इन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ इज फीलिंग लो, दिस इज द बुक। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल माई व्यूअर्स, प्लीज़ इस किताब को पढ़िए। आपको रियलाइज़ होगा कि हम कितनी छोटी छोटी मुश्किलों को कितना बड़ा बना देते हैं। मैम की जर्नी से ये हमने सीखा है टू नेवर गिव अप। Yes, never give up and persist. Persist, and if you really want something, you will get it. Requires a lot of hard work. You Yes. literally just have to focus, stay focused, and I think just don't listen to the society. Don't come under the influence of anyone who's trying to pull you back. Just And be very sincere about whatever you are doing. Whatever you are doing in life, you have to be very sincere about it. I mean, of course, I've read कि आपको कुकिंग, एम्ब्रॉयडरिंग, स्टिचिंग इस तरीके से ग्रूमिंग की गई थी। आपको एक होम मेकर बनने के लिए ग्रूमिंग की गई थी। बट यू वेंट अगेंस्ट ऑल द odds, you fought against your father and you actually did it. And there were so many obstacles. Even after becoming the officer, you were not given the job that you wanted. You were given the CID job. And काफ़ी टाइम तक आपने डेस्क जॉब कंटिन्यू करी, बट उसको भी बहुत पैशन से परस्यू करा आपने, उसको भी लुक डाउन अपॉन नहीं किया। I remember that you were given all the cases of crime against women because of the excellence in your work. That is true. That I feel that initially when I joined the IPS, people were not prepared for a woman in uniform in Bihar. Our society in Bihar was very conservative, and the DG felt ki, why have you come to Bihar? This is not Delhi, and how will you work? You have to wait. I will see the file, and then I will only post you. Kiran Bedi's file. Kiran Bedi's file. And Madam Kiran Bedi had already come into the service in 1972. I joined only in 1976, and in between there were just 2 or 3 women. So my father was also very hesitant whether I should join the police service and whether I will be able to cope with the
Environment. the environment and the tough life there, because I had been brought up in a very sheltered atmosphere. I was being groomed to become a housewife, and suddenly fate took a turn in which I had to take up a career, and there was a lot of apprehension. But I put my foot down and I said, no, why will I not go when I've qualified with along with so many other men? And then I went to the police academy and I realized that yes, it was a very, very tough training, but the men were undergoing the same kind of issues which we were going through. If my leg was paining and hurting, the men were also having the same things, because for the police job, brains chahiye, brawn nahi chahiye. You have to have the ability, a strong mind. Should have a very, very strong will to carry out things according to the law of the land. तो ये सब चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है than to be physically so tough and all. Yes, physical का ज़रूरत पड़ता है, that when you are doing long hours of duty, you are standing for hours and hours, but it is not the end and be all. You have to use your mind also to handle situations, and on that you have to be very alert. So I think the IPS training also, put trained us, groomed us for this service. सो मैम आप फिजिकल उसकी बात कर रहे हैं फिटनेस की, आपने अपनी बुक में भी लिखा है कि वी शुड इनकरेज गर्ल्स टू परस्यू अ स्पोर्ट एंड यू विश दैट फॉर योर ग्रैंड डॉटर्स एज वेल कि एक स्पोर्ट तो हमें ज़रूर परस्यू करना चाहिए. Yes, because I thought that that was a handicap. I had never done any physical activity in my school. एंड थोड़ा बहुत फिजिकल ट्रेनिंग भी होता था, तो उस दिन हमारा तबीयत खराब है और सम सच थिंग, एंड आई वुड नॉट गो. But when I went to the academy, I found that there were other girls who were very physically fit and they could do many things. But वो पुलिस का ट्रेनिंग भी ऐसा है कि धीरे धीरे करते करते द बॉडी acclimatizes to the new situation, and many of the things that were happening I could do, and you had to do, whether it is unarmed combat, whether it is holding a 303 rifle, whether it is firing, doing horse riding. वो सभी कुछ हम लोग करने लगे थे, बिकॉज अकेडमी में टफन तो फिजिकली भी कर ही देते हैं. राइट. तो मैम आपको फर्स्ट फीलिंग अभी भी याद है जब आपने पहला दिन ये ट्रेनिंग करा था? जब फर्स्ट दिन हमको, जब हम फॉल इन किए 6 o'clock इन द मॉर्निंग, हम लोग फॉल इन कहते हैं कि एवरीबडी इज देयर इज अ ब्यूगल साउंड, एंड एवरीबडी हैज़ टू गेट रेडी एंड बी ड्रेस्ड एंड बी रेडी ऑन द फील्ड. तो जब हम फील्ड पे गए तो कहा कि दौड़ शुरू करिए. सो ग्रुप्स हम लोग का बन जाता है, स्क्वाड्स. तो वो स्क्वाड में हम दौड़ना शुरू किए, 18 मेन और मैं अकेली. दैट वाज द वे द स्क्वाड्स वर फॉर्म्ड. There were 6 squads and every squad had 1 woman because we were 6. तो 18-19 का स्क्वाड था, और वहाँ उस्ताद बोले जाते हैं जिन लोग हम लोग का ट्रेनिंग करते हैं. तो उस्ताद ने कहा, वो सीटी बजाया और कहा कि अब दौड़ शुरू करिए. तो मुझे तो लगा कि मेरा पूरा अंदर से बाहर हो जाएगा, मैं पूरा वॉमिट कर दूंगी, क्या करूंगी. बट यू होल्ड बैक एंड यू कीप रनिंग. लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि अकेडमी में चूँकि हम लोग का बैच ऐसा था जिसमें 6 महिलाएँ आई थीं, देयर वाज़ अ लॉट ऑफ एनकरेजमेंट. ओके. दे वर वेरी पर्टिकुलर दैट वी स्टे बैक, दैट वी डोंट लीव द सर्विस. पहले हम सुने कि लोग जॉइन ही नहीं करते थे, वुमेन वुड नॉट जॉइन द सर्विस, वेरी फ्यू वुमेन वुड जॉइन. So here we were 6. So the ustad, yeah, the assistant directors who were looking after our training, they made sure that the ladies were encouraged. अगर हम पीछे रुक भी गए तो लोग आके बोलते नहीं, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो. अगर हम लास्ट भी हो जाते थे तो कहते नहीं, दौड़ते रहो, ये करते रहो, दिस इज द वे यू विल बिल्ड अप योर स्टैमिना. एंड एंड आते आते हम लोग सब कोई सभी कुछ करने लगे. राइट. बट मैम इतनी रिगरस ट्रेनिंग आपने लाइफ में कभी कोई फिजिकल स्पोर्ट परस्यू नहीं करा था, इतना मेजर ट्रांजिशन होता है ये अपने आप में. यू डिडंट फील लाइक गिविंग अप एवर, नॉट अ सिंगल डे? I think I had put in so much effort to get into the service. It was such a big struggle for me to get into the service that I had a huge sense of achievement. राइट. That against all odds I had qualified. एंड मुझे लगता था कि जब मैं यहाँ पहुँच गई हूँ तो फिर मैं क्यों गिव अप करूँ.
So I think propelled me. That was my biggest encouragement कि नहीं, Have to चाहे keep कुछ going भी forward. हो जाए तो I should keep going forward, and I enjoyed myself because I felt a very big sense of freedom. वो जो small town में you are brought up in a very sheltered atmosphere, ये करो ये नहीं करो, नानी है और बुआ हैं और घर के लोग कहते हैं कि तुम लड़की हो, तुम्हें ये करना चाहिए. Here I had the freedom to pursue things which I wanted to pursue. Right. And here was somebody encouraging me to do things in a way which would push me forward, will take me forward. Right. So suddenly मेरा outlook to life changed, that there was so much more women can do than. वो भी ज़रूरी है, खाना बनाना और एम्ब्रॉयडरी करना और घर को सँभालना और फैमिली को सँभालना. दैट इज़ आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो व्हाट वुमेन शुड नो अबाउट. बट मेरे लिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट था. Of And I course. felt that yes, why not? Why I cannot do it? Ma'am, you rode a horse with a broken hand. हैंड पाम मेरा टूट गया था. हाँ. So, oh my God. It इट was वॉज वेरी पेनफुल. बट हम बोले ना कि वहाँ पे इस तरह से एटमोसफियर हो जाता है कि यू बिकम कॉम्पिटिटिव. योर बैचमेट्स एनकरेज यू, योर उस्ताद एनकरेज यू कि नहीं मैडम ये आपसे हो जाएगा, आप कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए. सो इट्स अ बिग थिंग टू. I think the fact that you took up as a challenge, वो अपने आप में आपने टेस्ट पास कर दिया होगा कि आप में इतना ज़ील है कि उस I पेन think so. I think that I decided that I will not give up and I will do. And maybe I had that willpower जो मैं पहले नहीं जानती थी. बट मैं पढ़ने में तो अच्छी थी. आई वॉज गुड इन माई स्टडीज, सो दैट वॉज ऑल्सो अ विल पावर ना टू डू वेल इन योर Yeah. पढ़ाई. तो वो मैं पढ़ने में पूरे लगन के साथ मैं पढ़ती थी. हाँ, यू मेंशन्ड कि आपके फ्रेंड्स घूमने जाते थे, बाहर जाते थे, हाँ. बट यू वर लिटरली जस्ट इनटू योर बुक्स. वी वर ब्रॉट अप ऑल्सो लाइक दैट. कहीं जाना वाना होता नहीं था. वी वर इन पटना. सो माई पेरेंट्स वर वेरी प्रोटेक्टिव. वी वर 3 सिस्टर्स एंड 1 वेरी यंग ब्रदर. सो पेरेंट्स वैसे ही ब्रिंग अप किए थे कि भाई घर में रहो, दायरे में रहो, एक यही एनवायरनमेंट है. एंड देन सडनली द एनवायरनमेंट चेंज व्हेन यू आर ओनली विथ बॉयज़. अब अनाम कॉम्बैट भी करना है तो वो मेन के साथ करना है, शूटिंग में जाना है तो वो भी मेन के साथ जाना है. सारा एक्टिविटी ही सुबह 6 बजे से लेके रात तक मेन के ही साथ था. तो देन आई थिंक यू गेट द कॉन्फिडेंस बिकॉज़ पुलिस के नौकरी में भी ना जब हम आए थे तो देयर वर ओनली मेन अराउंड यू, देयर वर नो वुमेन. अभी हम 2-3 दिन पहले गए थे मथुरा, where the additional DG Anupam Kulshresht had called me for a keynote address to address a program which she was running for women and young girls, Operation Jagriti. And there I saw कि उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं आ गई हैं. पहले से. And lot of girls have come as young officers and their numbers are growing and they are doing so well. अब हमारे टाइम में अगर हम वहाँ 1000 का क्राउड था तो कम से कम 10-15 तो महिलाएं सीनियर ऑफिसर्स थी. और हमारे टाइम में अगर हम 1000 में जाते तो शायद आई वुड बी द सिंगल वन. सिंगल वन. सो वो बहुत चेंज हुआ है. एंड हर लेवल में विमेन आने लगी हैं. कांस्टेबल है, सब इंस्पेक्टर है, डीएसपी लेवल है, आईपीएस में तो खैर आने ही लगे हैं बिग नंबर्स. सो थिंग्स आर चेंजिंग एंड थिंग्स आर But चेंजिंग ma'am, फॉर द like बेटर. हाँ, like you mentioned in one of your interviews कि women के लिए अब easy इसलिए भी हो गया because 24 hours का नहीं रह गया सर्विस, they're given breaks. नो ऐसा नहीं है. इट ऐसा इज़ एट द लोअर लेवल मे बी. Okay. कहीं कहीं पे 8 आवर्स हो गया है बट वो कहाँ हो पाता है. मेन के लिए भी नहीं हो पाता है 8 आवर्स. हमारे यहाँ इतना बंदोबस्त है, इतना बंदोबस्त का ड्यूटी होता है कि दे आर ट्राइंग दिस एक्सपेरिमेंट कि कांस्टेबल्स वगैरह सबको 8-8 घंटा का ड्यूटी का शिफ्ट ड्यूटी दिया जाए और उनके एक हफ्ते में एक दिन छुट्टी दी जाए. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तो लॉ एंड ऑर्डर में डिप्लॉयमेंट हो ही जाता है. और आईपीएस ऑफिसर्स के लिए तो ये अभी शुरू नहीं हुआ है. अब इट इज़ नॉट पॉसिबल. it is rigorous. So it is so No, the duty hours of 8 hours is not possible. In fact, women के लिए नहीं possible है तो फिर men के लिए भी नहीं possible है. So this you're 24/7 on the job. Yes, that I agree, ma'am. This also reminds me of your last chapter about Agnes. Yes. You've written that if my uniform gave me status, Agnes gave me freedom to wear it. Yes. You literally, pour your heart out in appreciating how big
of a role that she played in your life? Yes, sometimes I think that now when I look back, I think there may be parallels because she came as a young widow. She had nothing. She had just a small child. And then how I sent her for a training. I didn't want to keep her. She was unwanted in my household. Sometimes I feel that, look, even I was unwanted when I went to Bihar. She was unwanted, but then I started making her do some work, and I found that she was a very studious person, very hardworking, and she carved a place for herself in my household. I sent her for a home guard training that she will get confidence. She wore a uniform and she felt very thrilled about it. And then she became an asset for me because I taught her how to write her own signature. Just writing Agnes Bilung took her so many months to hold a pen and write because she was a grown up girl. I mean, she must be 20, 25 years old, or maybe same age. I was 26, 27, and it took her a long time to know how to frame, how to hold the pen and write her name. बट वो सिखाने से ये हुआ कि उसका एक बैंक अकाउंट खुल गया। बैंक अकाउंट खुल गया तो उसका पैसा वहाँ जाने लगा। Then that sense of empowerment came to her. So I feel that with a little bit of interest in anybody, you can transform their lives. She even helped her get her treatment when Yes. she was diagnosed with ovarian cancer. Yeah, when she was diagnosed and I was sitting there with the doctor and he was giving me the reports. So he said surgery karna hoga and all. I said, how much will it cost? He said about the first surgery will be about 2.5 lakhs. So I was talking in English deliberately that she doesn't follow anything. Yes. But having worked with me, she could follow my expressions. And she started saying that इतना पैसा कहाँ से आएगा? I think she understood something and she's sitting next to me before the doctor. And I'm ignoring her. And I'm telling the doctor that can he fix a date and things like that. And she came out and kept saying कि मैडम यहाँ इतना पैसा कैसे आएगा? मैं कैसे करूँगी? So then I said, nothing doing. We will handle everything. And we did handle, and my family pitched in. My sisters helped, my children helped, my husband organized all her medical attention, all her tests, everything. So my husband and the whole family pitched in, and that's how we managed her. But mom, you're so compassionate. Like the DIG said to you, कुर्सी matter नहीं करती, जो कुर्सी पे बैठा है वो इंसान matter करता है. Yes, I think that is a very important lesson. Yes. He drilled into me. Yes. And when I look back, I think that that must have held me together because initial years में they're always pushing you back. You're not wanted. आपसे कैसे ये काम होगा? अब श्योर है ये हो जाएगा. जब हम फर्स्ट टाइम गए थे सब डिवीज़न, बहुत मुश्किल से मेरे को सब डिवीज़न दिया गया। और वहाँ भी जिस दिन हम जॉइन किए उसी दिन मर्डर भी हो गया, उसके थोड़े दिन के बाद ही डकैती फिर हो आपको गया। बोला कि ये सलामी है. हाँ, सलामी है तो पुलिस वो ऑफिसर्स बोले, बट माय बॉस वाज़ वेरी अपसेट, माय सीनियर एसपी वाज़ वेरी अपसेट कि एक लेडी ऑफिसर को दे दिया गया है, कैसे मैनेज होगा? बट थैंक गॉड फॉर मी, आई एम ग्रेटफुल कि मेरे लगन और मेहनत से आई कुड डिटेक्ट बोथ द केसेस। एंड उससे क्या हुआ कि केस डिटेक्शन से ना पब्लिक भी समझ गई कि मैडम काम जानती हैं। हाँ. हमारे सबऑर्डिनेट्स भी जान गए कि आई कैन लीड देम, आई कैन टेल देम दैट देखो इसको ऐसे करो, ये फुटप्रिंट को ऐसे उठाओ, ये रेड ऐसे होना चाहिए, ये रिकॉर्ड को ऐसे देखो ताकि इसमें क्रिमिनल्स का नाम देख सके। सो दे ऑल्सो रियलाइज एंड दे वर वेरी, आई थिंक, इन ऑ ऑफ मी इन द बिगिनिंग। एंड अगर उनके दिल में थोड़ा भी हुआ कि इनको हम नहीं सुनेंगे, अरे ये लेडी है, वो पूरा ख़त्म हो गया। वो विद इन 15 days ही आई कुड एस्टैब्लिश माई लीडरशिप। आई कुड टेल देम दैट नो, आई मीन बिजनेस। तो मेरा ड्राइवर हो या मेरा बॉडीगार्ड हो या मेरा पीए हो, वो सभी समझ गए कि आई मीन बिजनेस। एंड देन आई मस्ट से द सबऑर्डिनेट्स एंड द पब्लिक सपोर्ट मीन्स अ लॉट फॉर अ यंग आईपीएस ऑफिसर। एंड मैम यू हैंडल दिस केस ऑल्सो जहाँ पे एक लड़की का मर्डर किया गया था डाउरी की वजह से. हाँ। And yet her father came pleading to you कि leave, pardon my son-in-law because he will marry my other daughter. डॉटर इन लॉ, दैट वाज अ वेरी वेरी स्टार्क केस। मैं थाने में बैठी थी, फिर
थाने में नहीं थी, मैं घर ही पे थी जब फ़ोन आया कि एक बॉडी को लोग सोन नदी है वहाँ, वहाँ जलाने ले जा रहे हैं। सो इसको देखिए मैडम, तो मैंने अफ़सर इंचार्ज को वायरलेस पे कहा कि जाके वो बॉडी को रोको और ये नहीं होने दो। तो जैसे ही वो गया रोका तो सारे लोग भाग गए बॉडी को वहीं छोड़ के। तो फिर हम लोग जब तक हम थाने पहुँचे तब तक ऑफिसर इंचार्ज पोस्टमार्टम वगैरह के लिए उसको भेज दिया था। बॉडी बिल्कुल जल गया था। सो पोस्टमार्टम के लिए गया तो फिर हुआ कि कौन इसका केस करेगा क्योंकि था कोई नहीं। तो अगल-बगल पूछने से पता चला कि ये इस गाँव की थी और कहाँ से आई थी, कोई नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से आई थी। की लड़की थी। तो मैंने एक पुलिस ऑफ़िसर को भेजा कि जाके उसके माता-पिता को लाओ और तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाएगा, तब हम एफ़आईआर करेंगे। तो पेरेंट्स लोग आए, बहुत रोग आ रहे थे और चिट्ठियाँ दिखा रहे थे कि कितना ये लोग टॉर्चर कर रहे थे और इन्होंने कहा कि खाना बना रही थी और जल गई। ये बहुत कॉमन स्टोरी है फॉर वुमेन इन द विलेजेस। तो हमने केस कर दिया और केस को हम परस्यू कर रहे थे और हम लोग उसको चार्जशीट करने वाले थे। तो 2-3 महीने के बाद ये देखे कि यंग कपल ये ओल्ड कपल फिर आके बैठे हुए हैं थाने में, बिहटा पुलिस स्टेशन था। वहाँ बैठे थे तो हमने पूछा क्या हुआ? हम तो केस आपका देख ही रहे हैं। तो हाथ जोड़ के रोने भी लगे और हाथ जोड़ के मेरा पैर-वैर पकड़ने लगे कि मैं कहना चाहता हूँ कि केस छोड़ दीजिए। वो मेरी दूसरे बेटी से शादी करने को तैयार है। तो मैं क्या करती? इट वाज़ रियली अ डायलेमा बट मैंने कहा कि नहीं केस तो अब हो गया, वो तो चलेगा ही अब। भले ही मतलब हमने उनको कहा नहीं बट आई एम श्योर कि कोर्ट में जाके वो लोग मुकर गए होंगे या कुछ बोले होंगे। हाल में मैं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में ये बता रही थी एक ग्रुप ऑफ लॉयर्स को मैं आई वाज़ गिविंग अ टॉक टू देम। देन समबडी गॉट अप फ्रॉम द ऑडियंस एंड सेड मैम आप इतनी पुरानी बात कर रही हैं 78 70 80s की बात कर रही हैं ये अभी भी हो रहा है कई गांव में अभी मैं भी हो रहा करने है वाली थी मैम, ये तो अभी भी होता है। अभी भी होता है सो इट इज़ वेरी सैड वी आर चेंजिंग एंड येट वी आर नॉट चेंजिंग एंड द मोस्ट शॉकिंग पार्ट इज़ कि वो फादर कह रहा है मैं अपनी दूसरी बेटी की शादी शादी करा कर दूँगा उस दूंगा इंसान से। वो क्या उसका उस लड़की का क्या फ्यूचर होगा उसको क्या ट्रीटमेंट मिलेगा सो दिस इज़ वेरी वेरी सैड लेकिन दिस इज़ व्हाट सोसाइटी इज़ एंड यू हैव टू कीप स्ट्रगलिंग अगेंस्ट दिस Yeah. यू हैव टू Things कीप have स्ट्रगलिंग changed but not so much. यस दैट इज़ ट्रू So ma'am, looking back in those early days जब आपकी पोस्टिंग एक डेस्क जॉब पे हुई थी, how did you feel and how did you cope up because that's not exactly what you wanted? नहीं, जो पहला पोस्टिंग हम लोग 6 ऑफिसर्स बिहार को अलॉट हुए थे। देयर वर 3 लेडीज़ एंड 3 मेन। माय हस्बैंड इंसिडेंटली इज़ आल्सो एन आईपीएस ऑफिसर, सो ही वाज़ नंबर 1, आई वाज़ नंबर 2 एंड देन देयर वर 4 अदर पीपल। सो डीजी ने सभी का पोस्टिंग कर दिया और हमारा पोस्टिंग नहीं किया, कहा कि अभी वेट करना होगा। तो पहले तो हम वेट करते रहे, उसके बाद इन्होंने मेरा ट्रेनिंग के लिए पटना सब डिवीज़न ही दे दिया। उसके लिए बहुत से लोगों को बुरा लगा कि हमें पटना दिया गया है। पटना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट बिकॉज़ आई एम अ लेडी ऑफिसर। हमने तो पटना नहीं माँगा था लेकिन डीजी को लगा कि पटना ही ठीक होगा। तो मैं पूरे लगन से काम कर रही थी, लेकिन जब मेरा प्रमोशन हुआ, जब टाइम आया पोस्टिंग के लिए तो डीजी ने फिर मेरा पोस्टिंग नहीं किया, सारे लड़कों का पोस्टिंग अच्छे-अच्छे सब डिवीज़न में हो गया क्योंकि एज़ एन एएसपी यू आर गिवन इम्पोर्टेंट सब डिविजन्स बिकॉज़ पीपल एक्सपेक्ट दैट यू विल बी रियली डूइंग अ गुड जॉब देयर। क्राइम इन्फेस्टेड हो, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो और मुझे सीआईडी में पोस्टिंग कर दिया गया। वो एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड मेरे लिए था कि एक छोटे से अंधेरे कमरे में बैठी रहती थी, कोई काम नहीं था। फिर भी मेरे जो बॉस थे इमीडिएट बॉस मिस्टर फ़ज़ल अहमद साहब थे सीआईडी के इंचार्ज, वो मेरे पास फ़ाइल कहते कि नहीं सब फ़ाइल इसके थ्रू आएगा। तो मैं नोटिंग बैठ के दिन भर लिखती थी कि इस केस में ये होना चाहिए, इसमें ये हो कमी है, इसमें ये होना चाहिए। तो मेरा काम भी बहुत अप्रिशिएट करते थे लेकिन इट वाज़ एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटिंग। इट वाज़ एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटिंग टू सी अदर पीपल वर्किंग एंड आई एम सिटिंग इन अ dingy room from 10 to 5 doing just looking at files. Very sad. बट आपने वो भी बहुत पैशन से एंड बहुत डिलिजेंस से करा था फॉर यू टू हाँ, सी। हम उस वक़्त तक हमें ऐसे भी मेरा हैबिट था टू बी एनी वर्क व्हिच इज़ गिवन टू मी आई विल डू विथ ऑल माय एबिलिटीज़, आई विल नॉट शर्क। तो वो फाइल्स इतने-इतने आते थे तो मैं दिन भर उसी को पढ़ती थी बिकॉज़ मैं करती क्या वहाँ बैठ के? देयर वाज़ नथिंग एल्स टू डू एक्सेप्ट डू दोज़ फाइल्स। ये काम मैं कर सकती थी कि
एक ही 2 फाइल बैक देखती और किताब पढ़ती एंड ऑल, बट वो मेरे से नहीं होता था। सो आई वुड डू, आई मीन आई कांट शर्क वर्क, राइट। सो आई वुड सिट एंड गो थ्रू द फाइल्स। एंड मैम इवेंचुअली सारे क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन आपको आपके पास आने लग गए, सारी फाइल्स वो बाद में हुआ। वो बाद में? पहले मेरा पोस्टिंग जब हम नए डीजी आए और उनको मैं जानती थी बिकॉज़ उनकी बेटी मेरे साथ राइट। पढ़ती थी, तो मैंने उनको कहा कि देखिए मेरा करियर ख़त्म होगा, तो उन्होंने मुझे सब डिवीज़न दे दिया, दानापुर सब डिवीज़न व्हिच इज़ एन एएसपी सब डिवीज़न था, राइट। बड़ा सब डिवीज़न था और बहुत ही चैलेंजिंग असाइनमेंट था, मर्डर, डकैती, राइटिंग, नक्सलाइट सब कुछ था और मैं बहुत मेहनत करती थी और मेरा परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छा था। लेकिन उसके बावजूद जब मेरा प्रमोशन हुआ तो सभी लोगों का एसपी में पोस्टिंग हो गया और मुझे फिर से सीआईडी में दे दिया गया और वो भी था एंटी डाउरी सेल। एंटी डाउरी सेल का जो लॉ था, एंटी डाउरी एक्ट, वो इतना वीक लॉ था कि हार्डली कोई केस उसमें होता था, क्योंकि उसमें था कि आपको प्रूव करना है कि डाउरी दिया गया है इन ल्यू ऑफ मैरिज, एज मैरिज फिक्स करने के लिए डाउरी दिया जा रहा है। ये बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि बार बार लोग कह रहे थे ये डाउरी नहीं था, ये तुमने गिफ्ट दिया है, गिफ्ट दिया है, तो हाँ, गिफ्ट है तो फिर इट इज़ नॉट इन कंसिडरेशन फॉर मैरिज, इट इज़ अ गिफ्ट। तो कोई केस एस्टैब्लिश नहीं होता था। फिर भी 1-2 इंक्वायरी, 2-3 इंक्वायरी आने लगा और उसके बाद मैं करने लगी इंक्वायरी। मैं स्पॉट पे भी जाके इंक्वायरी करती थी। तो लोगों को पता लगा कि मैं तो ये केसेस को भी देख रही हूँ। तो एक दिन चीफ मिनिस्टर ने कहा कि एक महिला कोषांग खोलेंगे हम लोग। तो उन्होंने ये खोल दिया, ये विमेन्स सेल खोल दिया, क्राइम अगेंस्ट विमेन्स सेल। और पूरे देश में उस वक्त विमेन के लिए बहुत एक एनलाइटनमेंट हो रहा था कि विमेन के लिए वी मस्ट एनकरेज देम, क्राइम जो उनके अगेंस्ट हो रहा है उसका बेटर कंट्रोल होना चाहिए, लॉज बदलने लगे। तो फिर क्राइम अगेंस्ट विमेन जब हो गया ये सेल, तो फिर हम मर्डर का भी केस देखने लगे, रेप का भी देखने लगे, मॉलेस्टेशन भी देखने, तो एनी काइंड ऑफ क्राइम विच हैपेंड, किडनैपिंग होने का, वो सारा केसेस हम देखने लगे। तो मेरा दायरा ज़रूर बढ़ गया, बट इट वाज़ स्टिल अ डेस्क डेस्क जॉब। जॉब। तो 3 साल मैं उसको भी झेली, डेस्क जॉब को झेली और बहुत आग्रह करने पर मुझे फिर एसपी बोकारो भेज के भेजे लोग। एंड मैम एसपी बोकारो में आपने काफ़ी यू नो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल कह लो उन इवेंट्स को आपने हैंडल किया, लाइक द एंटी सिख रायट्स एंड द भागलपुर ब्लाइंडिंग्स। भागलपुर ब्लाइंडिंग जब मैं सीआईडी में थी तभी मैंने उसको हमारे को उस टीम में डाल दिया, हमको उस टीम में डाल दिया गया। और इसलिए डाला गया क्योंकि उन लोगों को लगा कि मैं नोट्स वगैरह अच्छा लिखती अच्छा, हूँ और लिटरेचर। लिटरेचर का बैकग्राउंड मेरा है, फिर मैं किताब में भी लिखी हूँ कि नो नॉलेज गेट्स वेस्टेड। तो उन लोगों को डाल दिया मेरे को भागलपुर ब्लाइंडिंग वाले टीम में। और भागलपुर ब्लाइंडिंग बहुत ही चैलेंजिंग केसेस था बिकॉज़ पुलिस वालों ने हार्डन्ड क्रिमिनल्स का ब्लाइंडिंग किया था टू कंट्रोल क्राइम। और पब्लिक इतना त्रस्त हो गया था विद द क्राइम विच वाज हैपनिंग इन भागलपुर कि वो पब्लिक को पुलिस को सपोर्ट कर रहे थे। और हम लोग का जो कहा गया था इंक्वायरी करने के लिए, वो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये लोग नहीं चाहते थे कि इस तरह का हीनस क्राइम गवर्नमेंट सपोर्ट करे। तो गवर्नमेंट का मैंडेट था कि आप जाके पता करिए कि ये क्यों हुआ, किसने किया, फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम लोग उसके लिए वहाँ गए थे, लेकिन पीपल वर अपोजिंग दिस, दे वर नॉट हैप्पी विद दिस। दे सेड कि नहीं, पुलिस वाले सही किए हैं, बट हम लोगों ने जो लिखना था सही काम हम लोगों ने लिखा। और जो सिख रायट्स हुआ वो तो जब हम एसपी बोकारो होके गए और मिसेस गांधी का असैसिनेशन हुआ 1984 में। और मैं उस दिन छुट्टी पे थी, बॉम्बे में थी। बॉम्बे गई हुई थी छुट्टी लेके। तो उसके असैसिनेशन के नेक्स्ट डे ही बहुत बुरा रायट्स हुआ और मेरे यहाँ बहुत लोग मारे गए। सो दैट वाज अ वेरी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस कि इतना मेरा पीसफुल डिस्ट्रिक्ट मैं छोड़ के गई थी और ये घटना हो गया एकदम। पीपल वेंट क्रेजी एंड किल्ड सो मेनी पीपल, तो दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट दे सिचुएशन। लिटरली हग्ड यू व्हेन यू रिटर्न्ड एंड दे वर लाइक क्या या क्यों गए छोड़ के? हाँ, हमको क्यों छोड़ के गए, हाँ। आपके जाने से ऐसा हो गया। एंड दैट रियली वुड ओवरवेलमिंग था। overwhelmed me because I said that how can people think that I would have been prevented it? But I really felt that my presence would have helped in या preventing this. I would not have allowed this
बिकॉज़ प्रीवियसली भी बहुत सारे इंसिडेंट्स होता था। हज़ारीबाग से आर्मी कंटोनमेंट से फोर्सेस मार्च करने लगे थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद भी बहुत टेंशन हो गया था। But I had gone to the Gurdwara, I had spoken to the Sikh community, I had spoken to the people in the city कि कुछ नहीं करिए, शांत रहिए, पीसफुल रहिए, पीस कमिटी बना दिए गए थे। तो वो सब कुछ इनके असैसिनेशन के बाद हुआ ही नहीं। People, I think they were so shocked and the police officers had no sense of direction because जो पर्सन चार्ज में था वो कुछ कर नहीं पाया। ही वॉज अ डीएसपी रैंक ऑफिसर और मैं सिर्फ 1 हफ्ते के लिए गई थी। तो उसी में ये हो गया। इट वाज़ अ वेरी अनफॉर्च्यूनेट And थिंग you एंड mentioned that you felt very guilty about it. आई ऑलवेज़ फेल्ट वेरी गिल्टी एंड सैड अबाउट इट, वेरी गिल्टी एंड सैड So, कि ma'am, मैं शायद क्यों गई, काहे गई, इसको नहीं जाना चाहिए था। बहुत दिन तक मैं सोचती रही इसके संबंध में। but ma'am, हम ब्रेक तो ले ही सकते हैं। आपने इतना गिल्ट क्यों महसूस किया? इट इज़ नॉट अप टू यू कि आपकी जान यस, बाद में यू फेल्ट कि देन मुझे लगा ना कि अगर ठीक है हम नहीं रहे, इन लोग के साथ इतना बड़ा घटना हो गया, बट एटलीस्ट नाउ आई कैन मेक एन एफर्ट एंड गिव देम सम रिलीफ। So there were a lot of women who were widows. So and there were families where there were small children and all. तो सभी लोग जो पंजाब से फैमिलीज आए वो लोग बोले कि नहीं इनको हम ले जाएंगे वापस। द फीलिंग्स वर वेरी स्ट्रॉन्ग कि मैं यहाँ नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मैं बोकारो स्टील प्लांट एंड जो भी वहाँ हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड था उन लोग से मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि नो यू प्लीज़ गिव देम जॉब्स एंड एवरीबडी अग्रीड। और बहुत हर औरत को मैंने पर्सुएड किया कि आप ये नौकरी ले लीजिए, डोंट लीव दिस एंड चिल्ड्रन के लिए ज़रूरी होगा आगे के लिए एंड मोस्ट ऑफ देम टुक। मैंने गवर्नमेंट को भी लिखा कि आप इन लोगों को जॉब दीजिए। मेरा ट्रांसफ़र हो गया, हमारा तो 3-3 साल पे ट्रांसफ़र हो जाता था। आई वाज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम देयर बट गवर्नमेंट लेटर ऑन गेव देम जॉब्स टू एवरीबडी। So I said, at least let me rehabilitate them. I could not stop the riots, but at least let me help with this. So it was a very satisfying time. And when I ever went back to Bokaro, these widows would come and I would see these girls, children who were really grateful that I had given them a fresh lease of life. So sometimes police officers get a sense of satisfaction from these things only. right. Ma'am, is there a happy memory from your whole journey? I have happy memories. I think that I got a lot of respect. And what I really liked about my career was that I did not go away from the straight path of values. आई स्टक विथ माई वैल्यूज़। पुलिस के बारे में लोगों को इम्प्रेशन है कि गलत सलत काम करते हैं, करप्ट होते हैं, गलत लोगों को फंसा देते हैं। एटलीस्ट इन माई करियर आई हैव अ वेरी क्लीन स्लेट एंड बिकॉज आई हैड अ क्लीन स्लेट आई थिंक आई वॉज गिवन अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड after writing my book and telling my story, a new lease of life has come to me because people want to talk about it because these are the positive things I've written. That yes, there were drawbacks, drawbacks in the sense that there were cases which you did not detect, but the effort was not कि हमने effort नहीं किया। मैंने पूरा effort किया, but yes, in your career 1 or 2% cases will not get detected, Right. but at least people know that all effort was made. Lot of effort, ma'am, from your end, from the day Yes. one. एंड you've mentioned कि लाइफ में एक रोल मॉडल और एक मेंटर ज़रूर होना चाहिए. इट रियली हेल्प्स. Yes. एंड योर्स इज जूलियो रोबेरो, Yes. जिन्होंने फिर आपको नेशनल पुलिस एकेडमी में वो कराया एंड वहाँ पे यू ट्रेन्ड अराउंड 500 पुलिस ऑफिसर्स. Yes, over the years. So I think that having a role model and a mentor in your service is very important. So जब मैं and mentors can keep changing. It's not required that एक ही mentor रहे lifelong. So पहले तो हमको लगता है कि जब मैं एएसपी थी और बिहार में काम करने गई थी तो my biggest mentor was my DIG, मिस्टर ललित विजय सिंह। वो मुझे बिल्कुल काम रगड़ के जो कहते हैं वो सिखाए। ही मेड मी लर्न रूल्स रेगुलेशंस, हाउ टू डू अ प्रॉपर इंक्वायरी, नाइट राउंड करना है, केस का सुपरविजन करना है। भागलपुर ब्लाइंडिंग में मैं उन्हीं के टीम में गई थी तो वो he would give me piles of papers to go through. So he really, I felt that he guided me. He did not treat me as at कि आप लेडी है कुछ नहीं सीख सकती हैं. He treated me at par and gave me a lot of confidence, I feel. इनफैक्ट वही हमसे बार-बार कहते थे कि
chair is not important, the person who sits on that chair makes a difference, and I've never forgotten it. बाद में जब मैं बोकारो स्टील सिटी में पोस्टेड थी, एंड आई वाज वर्किंग विथ ऑल द enthusiasm, but then one fine morning I got a call from Mr. Julius Ribeiro's, not really a call from Mr. Ribeiro, but from the Home Secretary, that Mr. Ribeiro is asking for you. Would you like to join? So my husband was there, and he said, he only took the decision that yes, we should go, and I said that yes, we will go. Both of us were asked to go, though I did not know Mr. Ribeiro at that time. He was the special secretary home, और वो लोग पुलिस ट्रेनिंग को रिवैम्प कर रहे थे, and they felt that more and more women officers were coming into the service, so having a woman in the police academy would help. So he saw my record, and he saw that I was doing well, and I was working in a district. So वहीं से उन्होंने हमको सेलेक्ट किया, and my husband and I, we both went to the National Police Academy. And I think कि National Police Academy में आने से मेरा होल There was a turning point. टर्निंग आपको। पॉइंट रियली, बिकॉज यहाँ जहाँ बिहार में लोग ये महिला हैं, ये करेंगी कि नहीं करेंगी, एवरी टाइम आस्किंग कि मेरा पोस्टिंग करिए, मेरा यहाँ करिए, माई हस्बैंड इज posted somewhere else, आई एम posted somewhere else. It was a struggle. But police academy में the playing ground was बराबर का था. Right. I was treated at par as assistant director, any other assistant director. There were 8, 9 of us, and we were asked to take classes. We went all around the country with the IPS officers. सारे IPS officers को इंडिया के में हर कोने में क्या क्या हो रहा है उसके संबंध में बड़े सीनियर और लर्नेड लोग आके उनको लेक्चर्स देते थे. वो लेक्चर्स हम भी सुनते थे कि कश्मीर में क्या हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, इस बॉर्डर पे क्या. तो योर होराइजन ऑल्सो widened and broadened, instead of being in a state and just thinking about law and order and caste and this and that. बट स्टेट में जाके ड्यूटी भी करना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक वहाँ आप काम नहीं सीखेगा यू कांट बी सेलेक्टेड. So that was a very big thing, and Mr. Ribeiro has always now then remained my mentor. कभी कभी उनसे टच हट भी जाता है तो फिर भी मैं उन्हीं के साथ जाती हूँ. अभी भी मैं उनको कंसल्ट करती हूँ. रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने कहा कि नो यू शुड वर्क, एंड ही asked me to come and work for different things. So I still consider him a role model, and somebody whom you adore, and the kind of Yeah. life he has led in his service. And I think after that आपकी career trajectory ऊपर ही गई. The graph was going up. Yes. You held positions at CSF and CRPF. नहीं, उसके बाद हमको कभी भी किसी से कहना नहीं पड़ा कि मुझे ये करना है, Yeah. मुझे ये जॉब दीजिए. I was really lucky. I mean, touch wood, I was lucky that I was always called कि आप यहाँ आइए. You will be. I was always selected to do this job. हमें कभी नहीं कहना पड़ा जाके कि मेरा डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग करिए, मेरा सब डिवीज़न में मैंने सब डिवीज़न में करिए, डिस्ट्रिक्ट में करिए. इवन व्हेन आई वाज चोज़न टू बिकम डीआईजी पटना, व्हिच इज़ अ कंप्लीटली अ फील्ड जॉब. पहले एएसपी फील्ड होता है, फिर एसपी फील्ड होता है, फिर डीआईजी फील्ड का जॉब होता है. देयर आई वाज जस्ट सेलेक्टेड. Yeah. And that was again a very challenging period, and उसके I have never had to then ask कि हम कहाँ जाएंगे, और हमने कभी कोई जॉब रिफ्यूज़ भी नहीं किया है. जैसे कि हम सीआरपी से मेरी पोस्टिंग कर दी गई माउंट आबू में, और लोग मेरे से कहते रे नकी लेक में कितना खूबसूरत तुम्हारा घर था. तो क्या नकी लेक में मैं सुबह से शाम देखती रहती क्या? देयर वाज नो अदर एक्टिविटी एक्सेप्ट टू डू ट्रेनिंग ऑफ सीआरपी ऑफिसर्स. बट मैं वहाँ भी बहुत लगन के साथ काम की. And then the DG picked me up to become IG Northern Sector of the CRP, which is a Delhi ka posting. And in those days, it used to handle all the problems of North India. तो मैं कश्मीर भी जाती थी, दिल्ली में इतना टेररिस्ट का प्रॉब्लम था वो भी देखती थी, फिर अपने फोर्स को देखने कभी नॉर्थ ईस्ट जा रही हूँ, कभी कहीं जा रही हूँ. सो फॉर मी वर्क इज़ वर्शिप, आई थिंक. एंड मुझे जो भी काम दिया जाता है उसको मैं बहुत लगन से करती हूँ, एंड दैट इज़ माय स्ट्रेंथ, आई थिंक. बट मैम ये आपके अंदर आया कहाँ से? क्योंकि घर में आपको वो एनवायरनमेंट नहीं मिला था, आपकी ग्रूमिंग उस तरीके से कभी हुई नहीं थी. लेकिन एक चीज़ था ना घर में कि डिसिप्लिन हम लोग को सिखाया गया बिकॉज था. ऑब्वियसली देयर आर वेरी बिकॉज पढ़ाई के ऊपर डिसिप्लिन था,
कि भाई पढ़ाई करना है और एकेडमिकली अच्छे से ग्रेड्स लाना है। उसके बाद जब मैं पुलिस के लाइफ में भी आई तो डिसिप्लिन ही डिसिप्लिन हमेशा रहा। सो यू नो एक तो पढ़ाई के एक घर में एनवायरनमेंट था डिसिप्लिन, फिर मैं कॉन्वेंट स्कूल में जाती थी दैट मेक्स तो वहाँ जो नन्स थी उनके यहाँ भी डिसिप्लिन, टाइम पे आना है, टाइम पे ये काम करना, ये काम इतने दिन में ख़त्म होना चाहिए, ये चैप्टर इतने टाइम में हो जाना चाहिए, ये एग्ज़ाम इतने टाइम पे होगा। So I think that discipline was really inculcated in my childhood, which happened to be a big strength when I went to work. ऑफ कोर्स। सो आई थिंक हमारी चाइल्डहुड में जो फाउंडेशन और जो ग्रूमिंग होती है, इट सेट्स द पाथ Yeah, फॉर and of फ्यूचर। course your mental strength, mental integrity, family में values के लिए बहुत importance था। Life में values रखना is important, only then you get a sense of direction. राइट। Yeah. एंड मैम, यू नो व्हाट वाज योर फादर्स रिएक्शन व्हेन ही फर्स्ट सॉ यू इन द यूनिफॉर्म? My father used to feel very happy that I was a police officer, and uh, that when I got posted to Patna, he was very happy, and he would tell people that yes, this is the posting she has got. But he could not understand that why I'm asking for a field posting, why I'm asking for this. उतना उनको उसका You used to feel scared, yeah, even safety wise. safety wise, I'm being protective and Right. all. But by then, I would take my own decisions. So, ma'am, recently you were invited by Oxfam to Afghanistan to build an effective women's police force. Huh. And Afghanistan में एक effective police force establish करना बहुत challenging रहा होगा, I think more than India. No, I was invited many years ago, and उस वक्त एकदम हाइट पे था वहाँ का जो क्राइसिस था अफगानिस्तान में। सो एवरीबडी सेड व्हाई यू गोइंग, मत जाओ, कुछ ना कुछ हो जाएगा एंड ऑल। और वहाँ से सारा सिक्योरिटी का क्या क्या एक्शंस लेना होगा, व्हेन यू अराइव यू मस्ट नॉट टेल एनीबडी, यू मस्ट नॉट टॉक टू एनीबडी। ये 5-6 क्वेश्चंस था जो इन यू हैव टू लीव विद सम फैमिली मेंबर। दोज क्वेश्चंस का आंसर्स ओनली यू नो कि कहीं किडनैप अगर हम हो जाएं तो ओनली आई वुड नो द आंसर्स। सो देन बट हमारे साथ कंचन चौधरी भी थी। शी इज़ नो मोर, शी वॉज अ सीनियर ऑफिसर, शी वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड। But I decided to go. Somebody said कि why will you not go and see what is happening there? तो जब मैं वहाँ पहुँची तो पता चला क्या कि Oxfam was working. There were a lot of foreign institutions working there. UN से लोग थे, Oxfam से थे, many global organizations से थे, यूरोप से forces women आई हुई थी, and they were working in all kinds of fields, and there were many women police officers from those forces. तो हम लोग को पता चला कि अफ़गानिस्तान में दे वर ट्राइंग टू नाउ बिल्ड अ विमेन के इम्पैंसिपेशन के लिए विमेन पुलिस फोर्स। सो दे वांटेड टू नो कि कैसे हो। तो हमारा इंटरेक्शन बहुत सी विमेन के साथ हुआ, वहाँ जो मिनिस्टर एक लेडी थी उनके साथ हुआ। बट द सैड पार्ट वाज दैट दे वर रेडी टू लिसन टू अस, बट आई डोंट नो वेदर दे वर प्रिपेयर्ड टू डू एनीथिंग, बिकॉज द लेडीज़ के साथ जब हम लोग इंटरेक्ट करते थे क्वाइटली तो दे वुड से कि हम लोग का यहाँ स्टेटस नील है। लाइक द वी फाउंड आउट दैट द लेडी एसपी, सिंगल लेडी एसपी वुड से दैट ये लोग हमको मानते नहीं हैं, कभी मेरे को सल्यूट नहीं करते हैं, मैं गाड़ी से उतरती हूँ तो बॉडीगार्ड्स ही नहीं उतरते हैं। एंड वेरी वन लेडी एसपी हैड इवन बीन शॉट डेड। द कांस्टेबल्स, जो लेडी कांस्टेबल्स वगैरह थी, वो बताएं कि मैं अपने मोहल्ले में किसी को नहीं बताती हूँ मैं कि मैं लेडी कांस्टेबल हूँ, because something may happen to me, and because गवर्नमेंट का पॉलिसी है टू हैव विमेन, तो मैं यूनिफॉर्म में पहन के तो कभी घर गई ही नहीं हूँ, जब मैं ट्रेनिंग के आती हूँ तभी पहनती हूँ। तो इन लोग हम लोग से पूछते थे द सीनियर पीपल कि हाउ डू यू डू इट, तो आई सेड हाउ हैव यू ऑल डन इट। एंड देन आई टोल्ड देम कि हमारे कंट्री में एग्ज़ाम होता है और उसमें सभी कोई compete करके आते हैं। इट्स नॉट कि कोई फेवरेट है आपका तो उसको ले लें ऐसे। वहाँ पे यही था कि किसी का कोई फेवरेट है तो उसको ले लिए। फिर वो लेडी का शोषण होता था। दे वर नॉट ट्रीटेड एट पार विद द मैन। उनको झाड़ू लगवाओ, पानी ले आओ, चाय लाओ, तो दे हैड नो स्टेटस।
So the senior people wanted that they should become very competent and very well versed with police jobs and law and order भी देखें लोग, women को encouragement में हो। वो लोग कहाँ-कहाँ उन लोग को ट्रेनिंग के लिए भेजते थे, कभी टर्की, कभी कहीं। लेकिन the whole atmosphere there was to treat women as second class citizens. वो तो मैम तो बहुत बुरी हालत है। बुरी हालत थी उस वक़्त। अब पता नहीं अब क्या था, बट उस वक़्त भी it was the society did not want to give any status to women. But the government was trying its best कि भई हम इनको मेनस्ट्रीम करें। और इसीलिए हम लोग से सुनना चाहते थे कि हम लोग कैसे मेनस्ट्रीम हुए हैं। तो आई सेड मेनस्ट्रीम करने के लिए तो पहला है कि सबको एक ही कॉम्पिटिशन के थ्रू आने दीजिए। कांस्टेबल्स की हों, सब इंस्पेक्टर्स हों, ऑल इंडिया, ऑल अफ़गानिस्तान का कोई सर्विस हो, तो दे विल कम एट पार एंड देन दे विल फील एंड कॉन्फिडेंट। वहाँ तो पैंट शर्ट या यूनिफॉर्म पहनना एंड हाँ, दैट इज सच अ बिग डील। और हेड कवर रखना। And you also mentioned that uniform was an equalizer in your field. Yes, yes. You know, that is one thing that makes everybody see men and women at power. At par. Yes. Yeah. So I would like to ask you, what's that one truth about leadership that only time can teach you? Um, Leadership is something which, yes, time will teach you, and in our service, we are trained to become a leader. Simple things, जैसे हम लोग को मोटर ट्रेनिंग एक होता था। सो वी हैव ऑलवेज ड्राइवर्स विथ अस, व्हाट वाज द नीड, बट इतना विगरस मोटर ट्रेनिंग होता था। दे वुड इवन टीच अस टू स्टेपनी बदलना, गाड़ी पंक्चर हो गया तो स्टेपनी बदलना एंड ऑल। इज ऑल्सो अ लीडरशिप क्वालिटी। दे सेड कि अगर कहीं आप जा रहे हैं और ये हो गया, और यू आर इन द मिड्स ऑफ अ फॉरेस्ट और इन द मिड्स ऑफ सम लोनली रोड, then your leadership is to also get down on your knees and start helping the driver to change the wheel of the car. That is also leadership. And then हमारे जो mentor शुरू में मिस्टर एलवी सिंह थे, उन्होंने मुझे बताया था कि leadership में how to always be decisive. हमको कभी-कभी इंक्वायरी वगैरह देते थे, हमको शुरू में इंक्वायरी मिला तो हमने लिखा ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ये सेड कि हुआ तो ठीक है तुमने लिखा, लेकिन इसका कंक्लूजन क्या है? कौन सही था, कौन गलत था? For a leader, you'll have to be a decisive person and you have to give a decision in a case. You can't say this happened, but what is your analysis? So leadership के लिए बहुत ज़रूरी है to be a decision maker and let your views be known, and you must have your values. ये नहीं है कि पुलिस में लोग बात करते हैं कि गलत काम हुआ and all. You are a leader, then you have to give the right direction to everything, whether you're in your writing or to guide your subordinates. Right. So ma'am, ऐसे बहुत बार हुआ होगा when you have to control a male dominated room, because since anyway the women officers are very less in number as compared to the male नहीं, मेरे टाइम में तो कोई रहता ही नहीं था। कोई रहता ही नहीं था. So हाँ। how did you get that hold of command? See, command वगैरह पुलिस में you're put in a conference room, you're always asked, okay, you will be the representative here. उस वक्त मुझे एक ही चीज़ समझ में आता था कि भाई, knowing your job is the most important thing. When you know the rules and regulations of the organization और कुछ डिस्कशन हो रहा है उसमें you are making a positive impact, तभी लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। अदरवाइज यू कैन कीप साइलेंट, यू नीड नॉट से एनीथिंग, स्टिल यू आर अटेंडिंग अ मीटिंग। Right. But if something is happening and you're contributing because you know what is being discussed and you're saying some positive things which can be done or which things can improve, then only people respect you, and that is also a leadership quality. And that is the way men start respecting you. Because एक lone voice जब बोलता है in a meeting with there are 25-30 people, people do listen to you, but then they also think ये क्या बोल रही है. So कोई बकवास काम आप नहीं बोल सकते हैं. You have to be very very focused on what you are presenting. And this also reminds me कि आपको फिर मैडम सर करके बुलाने लग गए थे लोग. हाँ. Yeah. That is because हम जब पुलिस में ज्वाइन किए तो कोई मैडम तो थी नहीं, आई एम द ओनली वन. तो सभी लोग सर 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 जानते थे बोलने, यहाँ तक कि कोई हाँ ना नहीं बोलेगा. पुलिस के सर्विस में कोई क्वेश्चन पूछो तो वो लोग सर सर, आप आ गई सर, फाइल चला गया सर, विटनेस देख लिया सर. तो ये लोग सर ही सर हमको भी बोलते थे. ड्राइवर हो, बॉडीगार्ड हो, जो हमारा ऑफिस में जो भी हो सर. देन मैं बहुत फेमिनिन हूँ, मैं साड़ी पहनती हूँ, साड़ी पहन के कभी-कभी इवनिंग वगैरह में रहती थी, या ऐसा जॉब्स भी होता था जब मैं साड़ी, तो इनको खुद लगने लगा कि कुछ ये लोग गलत बोल रहे हैं सर सर. सो दे कॉइन्ड दिस मैडम
एंड देन उसमें उन लोगों ने मैडम सर उसको कर Madam, and hence the title. हेंस द टाइटल. That is wonderful, ma'am. Any last piece of advice to the ones who are pursuing the examination of civil services? I would like to give a general message to women at every level, because I think young India is very aspirational and the government is taking a lot of steps to bring women in the mainstream. So I want to tell women that IPS का तो civil services है ही है, आप पढ़ लिख के तो पता ही चल जाता है IPS में. But at the lower level, when you're in the village में हैं, आप कोई छोटे से तहसील में हैं, आप ब्लॉक में रह रही हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि हर फील्ड में वेमेन के लिए रिजर्वेशन है. कांस्टेबल्स के नौकरी के लिए रिजर्वेशन हर स्टेट में अब है 30 से 33%. सब इंस्पेक्टर्स के लिए एंट्री के लिए भी रिजर्वेशन है. वहीं से आप इंस्पेक्टर डीवाईएसपी बनते हैं. देन असिस्टेंट कमांडेंट डीवाईएसपी, इसके लिए भी रिजर्वेशन है. आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में रिजर्वेशन है हर लेवल पे. वहाँ पे 33% गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन दिया है हर रैंक में. स्टेट्स में ज़्यादा रिजर्वेशन. सो विमेन शुड नो कि हमारे लिए ये सब चीज़ हो रहा है एंड दे शुड प्रिपेयर. कांस्टेबल का जॉब इतना आजकल अच्छा हो गया है, सैलरी अच्छा है. सब इंस्पेक्टर का भी जॉब में बहुत रिस्पेक्ट है. सो विमेन शुड ट्राई फॉर ऑल दीज जॉब्स. दे शुड नॉट ओनली थिंक कि हम टीचर ही बन सकते हैं या हम नर्स ही बन सकते हैं. अभी तो स्काई इज़ द लिमिट. Present. अभी हाल ही में आपने टीवी पे देखा होगा, ये महिलाएं आके कितना कुछ कर रही हैं. तो वी हैव टू टेक दिस, एंड माय मैसेज टू द गर्ल्स आर दैट डोंट फील हैंडीकैप. जो कुछ भी आपको मन है करने का, जो कुछ भी आपके एजुकेशन से आप कर सकती हैं, आप उसके लिए पुलिस सेवा में ज़रूर आइए. अभी नंबर्स बहुत कम है. मेरा पूरा कोटा भी नहीं भरा है जो कोटा गवर्नमेंट ने फिक्स किया है. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप एंड पीपल कैन मूव अहेड एंड दे शुड मूव अहेड. And any advice for the people who are already in uniform? People who are already in uniform, I want to tell them that प्लीज़ आप एक वैल्यूज़ के साथ काम करिए एंड विथ अ सेंस ऑफ डेडिकेशन. दिस इज़ व्हाट पीपल वांट फ्रॉम यू, दैट यू wherever you are posted, you make an impact and you make a difference in the lives of the people. Right. Thank you. Thank you so much, ma'am. It was such a wonderful conversation with you, and I would request all the listeners to please read this book. It is a must read. आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी. आप कभी गिव अप करने की फीलिंग ही नहीं आएगी. मैम के इतने स्ट्रगल्स थे, बट शी जस्ट डिडंट स्टॉप, एंड टुडे शी इज़ रीच वेयर शी इज़. एंड रिटायरमेंट के बाद भी इन्होंने अपना काम नहीं रोका. शी स्टिल associated with the Tata Consultancy Services and FICCI, हाँ. and I think she's reinvented herself now, and I think she's just an iron lady, another iron lady for us. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you for tuning into today's episode. I hope you liked listening from Manjari Jaruar ji herself. I feel super inspired, and I hope you do too. If you're liking our content, please subscribe kariye. It'll really help us bring better people and interest you with more such inspiring stories. Please do help us by subscribing, liking and sharing amongst your friends. And if you have some suggestions in mind as to who should be my next guest, please leave us in the comment section. Thank you.